علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وفهما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللہ تبارک و تعالیٰ ہس کن ہر شکر احسان یم رب ذوالجلال اسیت مستعار زندگی مز بھی اک ساتنس پنس پاک گرس مز قال اللہ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوزنک تو بوزنانک توفیق عنایت عطا کر. حمد و ثنا پتہ ٲسِن بے شمار درود و سلام برذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تہذ آل اسلامت. پتم کینٛہہ دروس وٲتۍ اَسہِ مسلہ طلاق کس متعلق یم زن احکام رب ذوالجلالن قرآن پاکس مز صادر کرمت چھ تم احکام وٲتۍ أسۍ پٔتمٮ۪ن دروسن مز پران. بہرحال آز چھ أتھۍ معاملس مز امچ ٲخری کڑی یتھ زن سہ طلاق ونان چھ یا 3 طلاقُک مسلہٕ یُس زن چھ تمچ گژھِ تھوڑا بہت بھی آز وضاحت. بہرحال تۄہہِ سٲری تھٲیزیو مے کُنتھ دھیان تاکہ کتھ ترِ صحیح تہٕ اصل پٲٹھۍ فکرِ. کتھ چھ بالکل مختصر البتہ دھیان تھاونٕچ چھ ضروٗرت. اسہِ پوٚر قرآن پاکس مز کہ ییٚلہِ اکھ انسان خانداری 3 طلاق دی بہرحال 3 طلاقو پتہٕ چھ سۄ خانداری تٔمِس پٮ۪ٹھ حرام گژھان. تمام یم تہِ ائمہ اربع یعنی 14 امام ان کے نزدیک چاہے یہ طلاق ایک ہی مجلس میں دی جائے یا چاہے الگ الگ دی جائیں بہرحال ان کا واقع ہو جانا حدیث سے بھی اور قرآن سے بھی واضح ہے. یعنی کٲشِر پٲٹھۍ ون بہٕ 14 امام یم زن چھ تم چھ امہِ کتھِ ہٕنٛدۍ قٲیل کہ چاہے یم 3 طلاق أکسی مجلس مز یِنا دن یعنی اکے ساتھ یِنا دن یا الگ الگ ین دن بہرحال اثر کے حساب سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی 3 طلاق 10 قسم طلاق یم کرن أکس خانداری مردس خاطر حرام. البتہ جو ہمارے ہاں ایک مسلک ہے مسلک اہل حدیث یا یمن اس ونان چھ یمن کیا غیر مقلد ان کے ہاں ایک مجلس کی 3 طلاقیں وہ ایک ہی سمجھی جاتی ہے. یعنی غیر مقلد یم زن چھ تم چھ ونان کہ اگر ہسا کانٛہہ شخص أکسی مجلس مز أکسی سٹنگ مز خانداری 3 لٹہِ طلاق دی تجھے طلاق تجھے طلاق تجھے طلاق اکی لٹہِ تو غیر مقلد جو علماء ہیں ان کا فتویٰ ہے کہ یہ 3 طلاق واقع نہیں ہو جاتے ہیں بلکہ ایک ہی طلاق واقع ہو جاتی ہے. بہرحال اتھ معاملس مز چھس بہ ویسن امچ کر بہ تھوڑا بہت وضاحت کرنے بہ امہ خاطر کہ میں اپنے مسلک کو حق
या मैं अपने मसलक की तायीद में आपके सामने दलीलें पेश करूं अम खातिर न कह, बल्कि ये मसल कर बह अम खातिर बयान कि अल्लाह ताला बचाइन। जब हमारे माशरे में इस किस्म के वाक़यात हो जाते हैं तो उस वक्त हम फतवा हासिल करने के लिए किन उलमा के पास जाते हैं? हम गैर मुक़ल्लिद उलमा के पास जाते हैं और उनसे किसी भी सूरत में अपनी बीवी जो है जिसको हमने गुस्से में तलाक दिया होता है उसको हलाल करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल दलाइल क्या अमिक वो आपके सामने आएंगे। अलबत्ता यमो तमाम दलाइलों ब्रोट कन छुस बह व्यसन तह ब्रोट कन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अख हदीस थावी जो कि इस मामले की बज़ाहिर बिल्कुल अक्कासी करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो पन्निस अकिस हदीसस मज फरमो कुर्ब क़यामत या आखिर ज़मानक निशानियों मज आस अख निशानी ये कि लोग अपनी बीवियों के साथ जिना करेंगे। यानी कुर्ब क़यामत चो निशानियों मज आस अख निशानी ये कि लोग करें क्या जनानन सत जिना। तो इसका जो इसकी शरह जो मुहद्दिसीन ने की है वो यही है कि लोग अपनी तलाक याफ्ता बीवियों को हीले और बहाने बनाकर हलाल करेंगे और उनके साथ निकाह को जारी और कायम रखेंगे। इस तरह से वो किसमें शामिल हो जाएंगे? वो मुब्तला हो जाएंगे जिना में। अच्छा, ये तो मैंने ज़िम्नन ये बात कही जिसकी पेशन गोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में की थी। बहरहाल दलील क्या ये सह तलाक। बहरहाल गोड़ था बह ये तह ब्रोट दलील मुहद्दिसीनो मुझ बोड़ बार मुहद्दिस तमिस वन इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह। इमाम शरफुद्दीन नववी अमिस पूरा नाव। उनकी मुझे सवाने हयात इस वक्त नहीं बयान करनी है। अलबत्ता चोटी के मुहद्दिसीनो मुझ तम सुन शुमार कर, बल्कि मुस्लिम शरीफस यजन शरह आमज वनिस कर उन शरूहात में से सबसे मुस्तनद शरह जो है वो शरह इमाम नववी ही है। सच को शरह इमाम नववी से शरह। बहरहाल वो उनके बारे में आता है कि उनसे पूछा गया कि आपकी राय 3 तलाक के बारे में क्या है, तो उन्होंने वापस जवाब दिया कि मेरी राय भी वही है जो आइमा अरबा की इस बारे में है। यानी एक मजलिस की 3 तलाकें 3 ही वाक़ हो जाती है। और फिर उन्होंने इस मसले को एक मिसाल के जरिए से समझाया। तुम समझो ये मसला कम से मिसाल से वो लिखते हैं अपनी इस शरह में, तुम लेखन कि अगर एक शख्स को कोई आदमी गोली मारे या तलवार के वार से कत्ल करे, जानबूझकर करे तब भी वो कत्ल होगा, और अगर मुगालतन इससे ये कत्ल हो जाए तो तब भी वो शख्स गोली के वार से कत्ल हो जाएगा। कत्ल होने वाला शख्स या मकतूल ये इस बात का इंतजार नहीं करेगा कि ये गोली हक से लगी है या मुगालतन लगी है, यानी असर तो इनमें होगा। यानी चाहे कहीं मुगालतन गूल लगी या जानित मानित ही तमिस गूल लगान, बहरहाल कत्ल गसन वोल प्राड़ना अत चीजस कि गोड़ यी फैसला करना कि यह सा गूल सोद मे लड़ने कि अलगोफन गोस। तो यही मामला किसका है? तलाक का है कि कोई तलाक के लफ्ज चाहे जान बूझ कर बयान करे या चाहे वो गुस्से में आकर एक ही मजलिस में इनका वार कर दे। बहरहाल अब वो हदीस में आपके सामने रखना चाहता हूं। यह हदीस पे जन गैर मुकल्लिद हजरात सारी बयान कारण कि 3 तलाक जो एक मजलिस में होते हैं वो असल में कितनी होती हैं? बहरहाल बुपरसा हदीस इबारत मैंने इसलिए ये इबारत साथ लाई है ताकि तोहती बेह इत्मीनान कि अरबी की इबारत असल में है क्या। बहरहाल ये रवायत यजन ये सही मुस्लिम में है। यस रवायत तह ब्रोट के पढ़ ये कत मज मुस्लिम शरीफस मज। और याद रखिए इस हदीस की रिवायत के बारे में किसी भी मुहद्दिस को कोई कलाम नहीं है, यानी ये बिल्कुल सनदन सही रिवायत है। बहरहाल रिवायत क्या रिवायत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अन इब्न अब्बास, यानी रिवायत करने वाले कौन है? हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास। और याद है जो इस मसले को वाज़िया करने के लिए आपको रावी का नाम याद रखना होगा, यानी रिवायत कारण बोल हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु। और ये वही हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास हैं जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दुआ दी थी, अल्लाहुम्मा अल्लिमहु तावील
या अल्लाह इसको अपनी किताब की तावील और तफसीर का इल्म दीजिए। तवै मुफस्सिरों मज सारे खो थोद तो आला मकाम केमिस हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला, क्योंकि इनके लिए दुआ खुद की थी किन्होंने, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहरहाल यह रिवायत करन अन इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल कान तलाक़ अला अहद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबी बकर व सनतैन मिन खिलाफत उमर तलाक़ सलासत वाहिदा फ़क़ाल उमर इब्न अल-ख़त्ताब अन्नन्नास क़द अस्तअजिलू फ़ी अम्रि कानत लहुम फ़ीहि अनासा फ़उमय्यिज़ुना अलैहिम फ़मज़ाहु अलैहिम। मुस्लिम शरीफ रिवायत इसका तर्जमा क्या है, बुश लफ्ज़न वफ्ज़न व्यसन तह ब्रोट कन थो ताकि इसकी वजाहत हो जाए। अन इब्न अब्बास यानी हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला रिवायत करते हैं कान तलाक़ु अला अहद रसूलिल्लाह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में व अबी बकरिन और अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कौन खलीफा बने थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक। व सनतैन मिन खिलाफत उमर और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इब्तिदाई 2 सालों में। यानी तलाक के मामले में हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में, फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी के अहद मुबारक में और हजरत उमर फारूक के इब्तिदाई 2 सालों में क्या मामला था तलाक के बारे में। व सनतैन मिन खिलाफत उमर तलाक़ सलासत वाहिदा, 3 तलाकों को एक ही माना जाता था, यानी 3 तलाकों मान कस। फ़क़ाल उमर इब्न अल-ख़त्ताब, तो इस पर उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया अन्नन्नास क़द इस्तअजलू कि लोग जल्दी करने लगे हैं, उजलत से निकला है ताजलू, लोग जल्दी करने लगे हैं फी अमरी उस बात में या उस मामले में कानत लहुम फीहि अनातफलू, उस बारे में जिसके बारे में अल्लाह ने उनको मोहलत दी थी। यानी तलाक़स मुतलिक हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुज रवायत कि हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास हसा फरमावन कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मानस मज और हजरत अबू बकर सिद्दीक सिंदिस ज़मानस मज और हजरत उमर फारूक सिंदिस गोडनिकन 2 वरियन हिंदिस दौरी खिलाफतस मज हसा ओस 3 तलाक युवन तसव्वुर करना अकै तलाक। यानी अगर खानदारी दी है 3 तलाक, उनको कितना तसव्वुर किया जाता था। अलबत्ता 2 वरी ये खिलाफत हजरत उमर फारूक सिंद गुजरे, अम पत कोर हजरत उमर फारूकन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन ऐलान अलल ऐलान कि लुक हसा लग तलाक किस मामलस में जल्दी करने और यथ मामलस में अल्लाह ताला मोहलत इमन दिसमस सोचने समझने तथ बारस में क्या करन जल्दी, इसलिए हम इसको उफयुजुना हम इसको जारी कर देंगे। यानी किसको जारी कर देंगे, 3 तलाकों को अब आज से 3 ही समझेंगे। यानी गोडनेथ दौरस मज कस तलाक 3 तलाकन मान कस अकै, अम हदीस तल फिक्र तरन हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास वन। मगर पत हसा कोर हजरत उमर फारूकन पन्निस 2मिस वरी गुजरने पत खिलाफतस मज यह ऐलान कि लुक हसा लग तलाक दिनस मज जल्दी करने, इसलिए यम सोचे समझे यम वन अत मज 3 लट पढ़ो तो गो अकै, बी पढ़ो 3 लट तो गो अकै, यम हसा अत मज करन वसत और इन्होंने इसमें थोड़ी बहुत डील दी है। तो हसा करो इसकी पे अमुक ऐलान कि जो कोई भी 3 तलाक देगा उसको हम कितने तसव्वुर करेंगे, 3 तसव्वुर। और ये सबसे बड़ी दलील है गैर मुकल्लिदीन की। यम जन गैर मुकल्लिदीन या यमन अहल हदीस हजरात वनन उनकी दलील यही हदीस है। तुम वन चूंकि सनदन इंतहाई मजबूत रवायत और हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करन कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्तस मज और हजरत अबू बकर सिद्दीक सिंद वक्तस मज और हजरत उमर फारूक सिंद इब्तिदाई दौरस मज हसा 3 तलाक यवन तसव्वुर करने कस तलाक अकै। पत हसा बदलो ये हुकुम के हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पन्ने दौर खिलाफतस मज अमि मसलहत मूजूब कि लुक वन एहतियात करन। बहरहाल ये दलील है किन की, गैर मुकल्लिदीन की। अथ जवाबस मज पहले मैं इसका थोड़ा अकली जवाब दूंगा, फिर इसके बाद हम अहादीस की रोशनी में बाकी अहादीस का भी मुताला करेंगे और कुरान की आयत का भी मुताला करेंगे, जिससे ये बात वाज़ेह हो जाएगी
کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی یہ روایت زیادہ قابل عمل، اس کی کیا وجوہات سمان بر. اب یاد رکھیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ جو یہ کہتے ہیں کہ کانت طلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر، یہ ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں 3 طلاقوں کو کیا سمجھا جاتا تھا؟ ایک ہی. اس میں کہیں پر ایک مجلس کا ذکر فی الحال نہیں، باقی عام کہ 3 طلاقوں کو کیا سمجھا جاتا تھا؟ ایک. جبکہ کسی بھی حدیث میں حتیٰ کہ غیر مقلد علماء آج کے بھی یہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اگر الگ الگ سے یعنی ایک ٹائم میں ایک طلاق، 2 دن کے بعد یا 1 مہینے کے بعد دوسری طلاق، اور تیسرے مہینے کے بعد تیسری طلاق دی جائے گی، غیر مقلدین علماء آج بھی کہتے ہیں کہ یہ طلاق واقع ہو جائیں گی اور یہ عورت اس کے لیے کیا ہو جائے گی؟ حرام. اگر عمل کرنا ہی اس حدیث پر ہے تیل گژھِ آسُن عمل ام حدیث مطابق یِتھ پٲٹھۍ کہ 3 طلاقوں کو کیا سمجھا جائے گا؟ ایک، چاہے وہ 3 طلاق کب دی جائے. اس حدیث سے پھر پتا چلتا ہے کہ مرد کے لیے کتنی طلاقوں کی گنجائش ہے؟ 9. تکیاز 3 یہ گو اکے مجرا، پت گو 3 سہ گو بی اکے مجرا، پت گو بی 3 سہ کیا گو؟ اب آپ کہو گے سر 9 کتھ حظ آئے؟ کیونکہ ہم نے پڑھا ہے الطلاق مرتان، طلاق کتنی مرتبہ ہے؟ 2. پھر آخر میں آیت آئی ہے فَإِن طَلَّقْتُمُوهَا، پس اگر آپ ان 2 کے بعد ان کو پھر سے طلاق دے دو تو یم کس طلاق ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ طلاق 3 مرتبہ ہے. اب اگر اس روایت کے مطابق لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں 3 طلاق ایک ہی تصور ہوتے تھے، تمی مطلب گو تیل کتیا طلاق حق چھ مردس 9 مینز کی تیلے بن 3 بلو 8. مگر غیر مقلدین علماء آج بھی کہتے ہیں کہ اگر ایسا بیون آخ مرد خانداری طلاق دی 3 مرتبہ ہی دے، یہ عورت اس کے لیے کیا ہو جائے گی؟ صرف غیر مقلدین یہ اصلی ڈفرنس، وہ کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں اگر طلاق 3 مرتبہ دی وہ کیا وہ ایک ہی ہو. اب پہلا جو جواز یا پہلا جو اشکال کھڑا ہوتا ہے اس حدیث میں کہیں پر بھی ایک مجلس کا ذکر مش کنجے ذکر، حالانکہ فی الحال تری دلیل فی الحال یہ تو عقلی دلیل ہے. ایک بات گۄڈنِچ کتھ چھِ یہ تکیاز کُنہِ جایہِ چھُنہٕ مجلس ہُنٛد ذکر آمُت، اس سے تو پھر غیر مقلدین کا فتویٰ اس طرح ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بیوی کو 3 طلاق دیتا ہے تو 1 ہو گئی، پھر 3 دیتا ہے تو 2 ہو گئی، پھر 3 دیتا ہے تب 3 ہو گئی، تب اس کے لیے بیوی حرام ہو گئی. مگر وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر الگ الگ دیں گے تو بیوی حرام ہو گئی. تو اے مطلب یا حدیث پر تم تہ پور عمل تیل کرن. ایک بات. دوسری بات حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ ونن کہ حضرت عمر فاروق ہسا کرنو پت فرمان جاری کہ بس آج کے بعد ہم 3 طلاقوں کو کیا تصور کریں گے؟ 3 ہی تصور کریں گے. تو اس کا مطلب ہے یہ حکم یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صادر کور یہ انہوں نے چوری چھپے نہیں کیا ہے، بلکہ یہ باضابطہ مشاورت سان صحاب صاحبن ہز موجودگی مز گومت، تبھی تو یہ فرمان کی شکل حاصل کرے گا، دلے کر یہ فرمان شکل حاصل. اب بتائیے مجھے کہ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمان جاری کرن کہ آج سے ہم 3 طلاقوں کو کیا تصور کریں گے؟ 3 تصور کریں گے. اب یہ ایک تصور بتائیے یہ چھا قانون کن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت میں تحریف؟ یہ قانون نہیں، یہ تحریف ہے، کیونکہ انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ہی بدل ڈالا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد مبارک دور وہاں کہا جا رہا ہے کہ 3 طلاق ایک ہی ہے، مگر حضرت عمر فاروق کو فرمان جاری نہیں 3 طلاق اب کتنے ہوں گے؟ 3. یہ تو انہوں نے بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کیا بالکل تحریف کر. نعوذ باللہ من ذالک. اگر نہ فکری طور میں آپ کو مثال سے سمجھاؤں گا. اخ نفر اخ تمس ناو عبداللہ، مثال کے طور پر اکس نفر ناو عبداللہ، ام سز خانداری ناو مثال کے طور پر فاطمہ. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عبداللہ نے اگر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی تو کتنے طلاق واقع ہو گئے اس حدیث کے مطابق؟ 1. یہ بیوی بالکل اس پر حلال ہے کیونکہ 1 کے بعد رجوع کا حق ہے جو ہم نے پڑھ لیا. حضرت عمر فاروق نے اس آرڈر کو اس کے مطابق 3 طلاق 3 ہے. اگر عبداللہ فاطمہ دیت کیا طلاق 3 طلاق دیے
तो बताओ ये उस पर क्या हो गई? तो कुरान कहता है कि हलाल को हराम करने का हक तो नबी को नहीं है, हजरत उमर फारूक का ये हक। वहां तो अब्दुल्ला के लिए उसकी बीवी हलाल, इस दौर में अब्दुल्ला के लिए उसकी बीवी उमर ने क्या कर दी? हराम, वरना हराम। ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल शरीयत के खिलाफ हुक्म है। ये तो अब कोई कहेगा कि यह हसा ओस रसूलुल्लाह ये हजरत उमर फारूक हसा बनो ये जन अत वनो कानून सियासी मसलहत लिहाज, मगर सियासी मसलहत के लिहाज से कानून तब बनता है जब वो शरीयत से न टकराए। तो बईद अज कयास कि वक्तो खलीफ, और वो भी आदिल खलीफा, और वो भी उमर फारूक जैसा खलीफा, ये बईद अज कयास है कि वो ऐसा हुक्म सादिर करें या इसका मतलब ये हो, वो अकली बहन। दूसरी बात, अगर हजरत उमर फारूक ये फरमान करें थी जारी, मान लेते हैं 2 मिनट के लिए, नौज बिल्लाह मिन ज़ालिक, हजरत उमर फारूक से गई गलती, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म की क्या कर दी? तहरीफ। वहां सहाबा का मजमुआ था जिसमें अशरे मुबशरा में से भी कुछ सहाबी जिंदा थे। अशरे मुबशरा में सहाबी हजरत अबू उबैदुल्लाह इब्न जर्राह जैसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसा सहाबी, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसा जलील कदर सहाबी, पान हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और हजरत उस्मान और हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसे जलील कदर सहाबी। क्या ये हो सकता है कि हजरत उमर नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को बिल्कुल बदल डाले और ये सहाबी खामोश रहे? यह क्या बनी? दूसरी बात, अगर तक वो इससे छोटे मामले हुए हैं, तारीख में पढ़मुत हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खत अक सातन मेंबरस पे, यम सातन मेंबरस पे खलीफा उस वक्त देता था जुम्मा का खुतबा देने के लिए खड़े हुए मेंबर पर सहाबी आखो थोद, अमीरुल मोमिनीन आपको हक नहीं पहुंचता कि आप खिताब करें या आप जुम्मा का खुतबा दें। अमीरुल मोमिनीन गो शशतर, लोग गए हरा सारी वुशन क्या बात है, क्या दलील? अमीरुल मोमिनीन गोड़ वनता ये कुर्ता कत बनोवु तय? हमें तो माली गनीमत में जो कपड़ा मिला है वो इतना कम था कि उससे कुर्ता तथ बनो न कुर्ता सानि खुद कि कत बनो यह कुर्ता गो ऐसे माली गनीमत मज क्या कर्म खयानत। बहरहाल हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यम मजमुअस मज करन इशारा पन्निस फर्जंदस कुन, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अब्दुल्ला यमिस दि जवाब। बहरहाल हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थोद वथन, तम पत वनान कि यथ काठनस तह लुकन तोरवु कपुड़ तिथे काठन तोर मेनिस बाब सबस ते कपुड़ माल गनीमत मज, मे तोर कपुड़ बाल गनीमत मज। अस कोर दशवया घर मशवर कि अगर बह बना कुर्त सुनैन बराबर, अगर ये बनाए कुर्त सुनैन बराबर, मैंने अपना ये कपड़ा हदिया किया किसको? अपने वालिद को। बहरहाल तम बनो ये कुर्त। वन में ये दलील कुर्त क्या ध्यान तो क्या, मुझे बताना है कि इतनी जुर्रत लोगों में थी कि मामूली मसले के लिए भी वो अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ बात करते थे और सारे मजमे में बात करते थे। वो इससे पता चलता है, एक अल्लाह ताला बचे, ये तो गुस्ताखी होती है, एक मामूली साहबी खड़ा होता है एक मामूली बात पर, और वहां तो ये शरीयत का मामला है और वो भी तलाक का मामला, और वो भी गैरत का मामला, शौहर और बीवी का मामला, निकाह का मामला, अतन वन न कोई सहाबी। दूसरी बात, अक सात यह वाक़ बूजमुत, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वथ अक सात मेंबरस पे थोद, दोपुक लुख लग मोहर ज्यादा करने मुतय्यन, आम लोगों के लिए परेशानी हो गई, चलिए आज हम मोहर की रकम का तयन करेंगे। रवायत मुझे आमुद हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दोप, आज से हम 400 दिरहम मोहर मुतय्यन करेंगे। अत मजमा मज खातून, एक बूढ़ी खातून खड़ा हो गई। बहरहाल सबस थोद, अमीरुल मोमिनीन आपको किसने हक दिया है मोहर को मुतय्यन करने का, जबकि अल्लाह की किताब ने कहा है किंतारुन। उन्होंने महर के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया किंता, यानी अगर किसी को वसत है तो वो पहाड़ के बराबर भी सोना दे सकता है। आपको कैसे ये जरूरत है कि किताब खुदा किताब में तो तारीखी जुमलों को हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया, औरत ने सच कहा, मर्द से गलती हो गई, यानी खातून वो पोज मगर मर्दस क्या गई, तो फौरन रुजू कर दिया हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला। अगर यमन मामलातन पे यम जन लकट खो लकट सहाबी
या हत्ता कि औरत जैसी कमजोर शय वो खड़ा हो जाती है बड़े दरबार में और मजमे में, और कहां पर, खुतबे की जिस सीढ़ी पर थे हजरत उमर फारूक, तम सात तुम जुर्रत सान वन उमर चके वो नहीं कारण। क्या ये पॉसिबल है कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला बदलाए कानून रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और लोग चुप बैठे और वो कहेंगे कि हाँ उमर हमें ये फैसला मंजूर है? वो इससे पता चलता है कि ये हदीस जो है इसका मतलब कुछ और है। युस उमर फारूक फरमान कोड़मुत इसका मतलब कुछ और है। सवाल पैदा सपदन वो मतलब क्या है और उमर को क्यों ये कहना पड़ा कि लोग किसी मामले में जल्दी करते हैं। बहरहाल इस हदीस का मतलब, अम हदीस मतलब कुछ सारे को ज्यादा बेटर वन, जिसने इसको रिवायत किया हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास। ये खबर अखबार मज वुचमुत तथ कॉलम साकिब साहब ज्यादा ये तजुर्ब, बातें उनकी मफहूम हमारी, यानी किसी ने कोई बात कही होती है तो फिर मफहूम कौन बताता है? एडिटर। इस पर शायर वन शार तो फिर उसकी कोई और तशरीह करता है, मगर सोचता बेड़ा कुछ साथ गारा करन। क्यों? क्योंकि जो माफी जमीर शायर बताना चाहता है वो तो सिर्फ किसको पता है? शायर को पता है। तशरिया कर ये गई तर्जुमानी, मगर ये पूरा यकीन के साथ हम नहीं कह सकते हैं कि हमने शायर के दिल की तर्जुमानी की। इतने पॉइंट या हदीस से रवायत कर हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर, तो उन्हीं से पूछते हैं कि आपका क्या मतलब था इस हदीस से। बहरहाल रवायतन मुझे आमद हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास के एक जलीलुल कदर शागिर्द थे हजरत इकरमा रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह। हजरत इकरमा ये इमामुल मुफस्सिरीन कहे जाते हैं ताबीन में से। ताबीनों मुझे मान सारे खुद थद पायुक मुफस्सिर कुरान कुस हजरत आशना तिकाज उस्ताद कुस उस्ताद इमामुल मुफस्सिरीन जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की है। यही हजरत इकरमा यम रवायत करन दपन अक सातन मजलिस मज बिहित, हम एक मरतबा मजलिस में बैठे हुए थे, एक औरत हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत, एक शख्स हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर है। अर्ज करन ए सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी बीवी को गुस्से में आकर 3 तलाकें दी। तो लफ्ज गुस्से में आकर, तो इससे क्या मतलब हुआ? तो गालिब गुमान है कि ये तलाक उन्होंने एक ही मजलिस में कहे होंगे, गुस्से में आकर से लफ्ज। तो आप बताइए ये साथ वो ए साहबी रसूल ए इब्न अब्बास, मुझे बताइए क्या मैं अपनी बीवी के साथ रुजू कर सकता हूँ? क्या बहका पानी खानदारी से रुजू? अगर अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने इस हदीस के मुताबिक इसी तरह समझा होता जिस तरह गैर मुकल्लिदीन ने समझा है, इन क्या वन 3 तलाके तो एक ही होते हैं रुजू का मौका। मगर हजरत इकरमा रहमतुल्लाह अलैह हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला बहुत देर तक खामोश रहे। यानी हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास वारियास कालस इतनी देर खामोश रहे तो हम समझे कि हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला इनको इनकी बीवी हलाल करके देंगे। ऐसा को गुमान कि यम करन इमन ये हलाल कोस यहस खानदान। मगर वारिया वक्त गुजरने पत वोन हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनस लोग अल्लाह की दी हुई सहूलियतों को बुला डालते हैं और अपने आप को मशक्कत में डालते हैं, फिर इब्न अब्बास के पास आते हैं और कहते हैं इब्न अब्बास इब्न अब्बास इब्न अब्बास रुजू की कोई सूरत है, जबकि उनकी बीवी उनके लिए हराम हो चुकी होती है। खानदार क्या गमज। इसके बाद वो सूरत तलाक की वो इब्तिदाई 5 आयात तिलावत करते हैं जिनमें कहा गया है कि अगर आपको 3 तलाक देने ही पड़े तो उनको 3 तोहर में बांट कर दे दो, यानी जल्दी आत्मज कारण, वरना नतीजा ये होगा कि आप अपने आप को मुश्किलात में डाल दोगे। इनको हवाल दे दो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कि लोग अल्लाह की दी हुई सहूलियत का इनकार करते हैं, अपने आप को मुसीबतों में डालते हैं, फिर इब्न अब्बास के पास आते हैं कि मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता है, जबकि उनकी बीवी उनके लिए क्या हो चुकी होती है। ये हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास का फतवा है। इसने फतवा, अब फतवा इस हदीस के मुताबिक है या हदीस मुताबिक है, तो इससे पता चलता है कि इस हदीस का कोई और मतलब है, जो मतलब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लेते थे, जिसकी वजह से उन्होंने ये कानून बनाया। वो कानून क्या है? बहरहाल अमिश तशरीह कर्मज हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह पानी शहर आफाक किताब तच नाव उम्मुल कुरा या उम्मुल किताब,
किताबुल उम उसका नाम है, किताबुल उम, तथ मुझ तुम लेखन। वो क्या लिखते हैं, बहरहाल उसकी तफसील मुझे नहीं बतानी है, अलबत्ता तमिस सहाबी सुंद हजरत नवाज शायद तमिस नाव, तमिस सहाबियस मेशन वनस तम नाव रकाना, रकाना, हजरत रकाना का वो वाक़ा लिखते हैं, जिससे ये बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा कि हजरत उमर फारूक ने क्यों ये हुक्म जारी किया था। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, और ये भी याद रखिए, ये जन एक ही मजलिस में 3 तलाक का मसला है, ये 7,700 वरियन तमाम उम्मत अत पे मुत्तफिक कि 3 तलाकें 3 होती हैं, चाहे एक मजलिस में हूं या दूसरी। पहले शख्स जिन्होंने 3 तलाकों को एक माना वो भी एक अजीम हस्ती थे, हजरत इमाम तैमिया रहमतुल्लाह अलैह। तुम गोडनिक शख्स जिन्होंने 3 तलाकों को एक माना है। फिर उनके शागिर्द इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह, थद पाइक इमजन आलिम, उन्होंने भी अपने उस्ताद की तायीद की है। वो भी 3 तलाकों को क्या समझते हैं, एक। मगर उनके एक और शागिर्द किमसिन, हजरत इब्न क़य्यिम सिन पर शागिर्द इब्न रजब इमजन हम्बली, और हदीस में इनका मकाम अपने उस्ताद से ज्यादा बड़ा माना जाता है। उन्होंने भी पहले 3 तलाकों को एक ही समझा, लेकिन बाद में उन्होंने रुजू किया। अत पे मसला वोथमुत कि एक मजलिस की तलाकें जो है ये असल में कितनी होती हैं, एक ही। अच्छा, अब मुझे बताना है ये हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह से क्या इस पे मैं जिक्र बनूं। इमाम शाफी ने इस किताबुल उम में अपने खानदान का एक वाक़ा बयान किया है, और अजीब इत्तिफाक, जिस सहाबी की ये हदीस है हजरत रकाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन्हीं की नस्ल में से हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, यही से नस्ल में से कौन, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह। तो उन्होंने अपनी किताबुल उम में लिखा है, उन्होंने इस हदीस को रिवायत किया है कि मैंने अपने चचा से सुना, मैं सबूज के मिस्निश पानिस पेत्रस ने, उन्होंने अपने चचाजाद भाई से सुना, उन्होंने अपने किसी नवासी से पछुआ, और जाते जाते उन्होंने सनद पहुंचाई है किससे, अपने आखिरी जद अमजद हजरत रकाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तिकाज हजरत इमाम शाफी कोहद नस्ल मुझ एमसे हजरत रकाना रज़ियल्लाहु ताला से नस्ल। तो उनका वाक़ा, उनकी हदीस वो बयान करते हैं कि हजरत रकाना एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और उन्होंने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी। मैं पानी खानदारी क्या तलाक, अलबत्ता मैंने लफ्ज अलबत्ता इस्तेमाल किया। लफ्ज अलबत्ता को तुम्हें मुकम्मल तलाक, यानी मुकम्मल तलाक से मुराद क्या है, 3 तलाक, अलबत्ता। मगर यमो वन, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी गर्ज इससे 3 तलाक की नहीं थी, मेरी गर्ज इससे यह थी कि मैं आपको मुकम्मल 1 तलाक देता हूं। यानी लफ्ज करेगी 3 लट इस्तेमाल, बल्कि लफ्ज क्या कर इस्तेमाल। ये हदीस यहाँ पे अलबत्ता पढ़ा सा हदीस थी, अब उसमें टाइम लगा क्योंकि वो बहुत ये तवील हदीस है। बहरहाल अमुक मतलब ये कि हजरत रकाना ने क्या कहा कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दी और मुकम्मल तलाक दी। अलबत्ता लफ्ज इसका असल में आज उर्दू में तर्जमा किया जाता है मुकम्मल तलाक दी, यानी मैं ऐसा करी मुकम्मल तौर पर तमिस तलाक। मगर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं कि मेरा इससे इंदिया उनको 3 तलाक देने का नहीं था। बहरहाल हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलफ, तो बस हलफ तुलनाइत वनस, क्या आप अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहते हो कि आपकी गर्ज इससे क्या थी, 1 ही तलाक की थी। तो या रसूल कसम के हलफ पास मे गर्ज अम सत क्या अक तलाक। तो रसूलुल्लाह ने उनको कहा, जाओ अपनी बीवी के साथ रुजू करो, गो करियो पानी खानदार से क्या। अब इस किस्म के मसाइल जो हैं अहद रसूलुल्लाह के अहद में भी होते रहे और हजरत अबू बकर सिद्दीक के अहद में भी होते रहे कि अगर कोई शख्स मुकम्मल तलाक देता अपनी बीवी को, फिर खलीफा के सामने या रसूलुल्लाह के सामने क्या करता, रसूलुल्लाह के सामने वो हलफ उठाता। रसूलुल्लाह हलफ तो नाम कि आपको इंदिया आपका क्या था, आपकी नीयत क्या थी। तो वो क्या कहते थे, म्यान गारज हाज। अब हजरत उमर फारूक के दौर में जब ये जमाना आया तो हजरत उमर फारूक ने कहा कि अब हम नियतों पर इस पर क्या वनन, अब नियतों पर अब दारमदार, क्योंकि लोगों में बिगाड़ पैदा हो गए। पहले जमाने में रसूलुल्लाह के जमाने में लोग इंतहाई मुखलिस थे, नंबर 1। दूसरी बात, रसूलुल्लाह अल्लाह के नबी थे, उनके ऊपर वही का नुज़ूल होता था। कोई अगर कोई झूठ बोलता तो अल्लाह उनको क्या
बिल्कुल बाखबर उस बात से कहते कि ये लोग झूठ कहते हैं, उसके बारे में जरूर वही नाजिल होती। मगर चूंकि रसूल में अल्लाह ताला से रसूल वही इंतजाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको हलफ देते थे, लोग भी बिल्कुल अपने दीन और अपने खुलूस के पक्के थे, तुमस्ती वन तुम दिलस में इंडिया। लेकिन चूंकि अब जमाना नबूवत के बाद का है, लोगों में बिगाड़ पैदा हो गया है, इसलिए हम इस सूरत की तलाक को जिसमें हलफ दिया जाता है इसको हम माजूल करते हैं और आज से 3 तलाक जो अपनी बीवी को देगा हम उसकी नियतों का दारमदार या उसका एतबार नहीं करेंगे, बल्कि अब सिर्फ दारमदार जाहिर पर होगा। फैसला किसके मुताबिक होगा? जाहिर पर। और ये बनो पत नो कानून। आज किसी भी आज अगर अदालत में वुचो, चाहे चोरी का भी हुक्म हो, चाहे जिनाओं का, बहरहाल फैसला किस पर होगा? जाहिर पर। अगर नियत वो सच भी कहता हो कि मैंने ये नहीं किया, मगर अगर शवाहिद तमिस खिलाफ तो जाहिर पर ही इसका फैसला होगा। अमी मिसाल अगर कह शख्स अल्लाह ताला बचाइन अपनी बीवी को कहते हैं तुझे तलाक तुझे तलाक तुझे तलाक, मगर पत पढ़ इंशाअल्लाह, क्या पढ़, तो उसको तलाक नहीं लगती है, तमिश तलाक लगन, क्योंकि इसमें लफ्ज क्या है? अगर अल्लाह चाहे। अलबत्ता उलमा लिखते हैं अगर इसने कहा तुझे तलाक तुझे तलाक तुझे तलाक, उसकी बीवी उसी कमरे में थी, उसने ये सुना, मगर इंशाअल्लाह बोझन नहीं की। अब अगर ये काजी के पास फैसला जाएगा, अगर सास लटते वन हो नफर मान्यो वन सास लटते मैंने इंशाअल्लाह कहा था और ये सच भी कहता है, लेकिन हजरत उमर फारूक ने यह कानून बनाया कि अब नियतों को नहीं देखा जाएगा, नियतें अब आखिरत में तोली जाएंगी, क्योंकि अब लोगों में बिगाड़ पैदा हो गया है। अब असूल और अब ज़ाब्ता किस पर होगा? अब तो जाहिर पर होगा। इसलिए जाहिरी तौर पर इस बीवी को तलाक लगेगी, अगरचे हकीकत में नियतन हलाल, मगर अब फैसला किस पर होगा? जाहिर। यही इस हदीस का मतलब है और इसी के मुताबिक किसने फैसला दिया था? हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने, क्योंकि वरना उस शख्स ने भी तो 3 ही तलाकें दी थी। उसके लिए हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने उनको क्या किया? उनकी बीवी को उनके लिए क्या कर दिया? हराम। अमिश तौसीक बीत के रवायत से मैं सिर्फ रिवायतें पढ़ूंगा। इब्न माजाह में रवायत हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु सारी जानिन मन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के फर्जंद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, और उमर मुतलिक से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावत कि ये हसा क्या, ये जन्नत में जन्नती नौजवानों के सरदार होंगे। बहरहाल उमर मुतलिक आमुद जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया, पढ़ तारीख हजरत अली, जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को क्या किया गया, और अजीब तारीख ये तमाम खुलफा को शहीद ही किया गया। ये सारी क्या करना? अच्छा, जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया तो शहादत के बाद युति शहीद करने हजरत हसन की एक बीवी थी, उनका नाम था आयशा। नाम क्या? आयशा। वो कमरे में दाखिल हुई और उन्होंने हजरत हसन को मुबारकबादी दी खिलाफत की। कमिश दपस मुबारक तह बने वो खलीफ, क्यों? क्योंकि अब तो जाहिर अली के बाद किनको खलीफा बनना था। तो इस बात पर हजरत हसन को इंतहाई गुस्सा आया कि खलीफे को शहीद किया गया है और आप मुझे खलीफा बनने की क्या कर रहे हैं? मुबारकबादी दे रहे हैं। इब्न माजाह में रिवायत। तो इसी असना में इसी मौके पर उन्होंने उनको तलाक दी और अजीब इत्तेफाक वो उनको 3 तलाकें देते हैं। कस तलाक रिवायत इब्न माजाह में। फिर बाद में चलकर हजरत हसन कहते हैं कि अगर मैंने इनको 3 तलाकें न दी होती तो मैं आशा से जरूर रुजू करता। बकरा आशा से क्या जरूर रुजू। और इसके बाद इससे भी क्या पता चला कि 3 तलाकें वाक़ई हो जाती। अब अगर इतना ही होता अतिकाहा तहवील और मगर इसके बाद इसी इब्न माजाह की रिवायत में, इसी हदीस की रिवायत में है कि हजरत हसन ने कहा मैंने अपने नाना से सुना है कि कोई शख्स अगर अपनी बीवी को 3 तलाकें दे, चाहे 3 तोहर में दे या यकबारगी में दे, ये 3 तलाकें एक मर्द को उसकी बीवी के लिए हराम कर देते। तो इससे ये मामला बिल्कुल वाज़िह हो गया कि 3 तलाकें जो है बहरहाल एक मजलिस में दी जाए या अलग अलग दी जाए, बहरहाल ये 3 तलाकें वाक़ई हो जाती हैं। ये अपना असर दिखाती हैं और ये औरत को क्या करती हैं? एक मर्द के लिए हराम कर देती। 3 रवायत आखिरी, इस पर मैं फिर मुकम्मल कर, क्योंकि वरना इस पर बहुत सारी हदीसें हैं। हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आदमी के मुतल्लिक़ खबर दी गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक शख्स के बारे में खबर दी गई। क्या खबर दी गई? जिसने अपनी बीवी को एक साथ 3 तलाकें दे दी।
उन्होंने अपनी बीवी को एक साथ तलाक़ें दी। और बाद में चलकर पता चलेगा ब्याक हदीस, उससे पता चलता है कि इस सहाबी का नाम था हजरत उवैमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उवैम अलिफ आइन वाव या मीम रिया उवैमिर, उन्हीं का ये वाक़ा है, आगे चलकर ये पढ़ेंगे। उनके मुतल्लिक़ खबर दी गई जिसने अपनी बीवी को, और यहाँ बिल्कुल साफ अल्फाज है, एक साथ 3 तलाक़ें दे दी। कितनी साथ? एक साथ 3 तलाक़ें दे दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा होकर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा होकर खड़े हो गए। रसूल जब ये खबर उन तक पहुंच गई तो वो गुस्सा होकर, क्या इसके गुस्सा होकर, क्योंकि यकबारगी में 3 तलाक़ें देना ये पसंदीदा अमल नहीं है, बल्कि सूरह तलाक़ में पढ़ा वहाँ ये 3 तलाक़ें देने का बाज़ाब्ता तरीका भी सिखाया गया अगर किसी को जरूरत पड़े। यानी सुदीने में 21 तोहरस में फिर एक तोहर खत्म हो जाए तो दूसरे में, वो तो हम उसकी डिटेल्स हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास करे ये क्या एज कोर्ट। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा होकर खड़े हो गए और फरमाया, क्या अल्लाह की किताब के साथ खेल किया जाता है? यानी क्या अल्लाह की किताब के साथ, यानी सूरह तलाक़ में आयो कि तोहे हुक्म ओसु इस पर दियो तलाक, आपने यकार में दिया। और फरमाया क्या अल्लाह की किताब के साथ खेल किया जाता है, हालांकि मैं तुम्हारे दरमियान अभी मौजूद हूं। इतने में एक सहाबी या एक आदमी खड़ा हो गया। ये ली रसूल तेज तो गुस्सो गुस्सो, और ये हालत देखी तो एक आदमी खड़ा हो गया और कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं उसे कत्ल न कर दूं? यानी क्या बकारना सो शख्स को जिसने ये एक ही बार में तलाक दे दी है, क्या मैं उसको कत्ल न कर दूं? तो इस पर रसूलुल्लाह ने इस हदीस की असनाद को हाफिज इब्न काय्यब ने सही अला शरत मुस्लिम करा दिया है। यानी ये इसकी रिवायतें क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसी बिना पर इमाम मालिक और दीगर फुकहा वो तीसरी तलाक को नाजायज करा देते हैं। ठीक है, रसूलुल्लाह को गुस्सा ही था। तो अब देखिए ये इसी हदीस के बारे में है। तो यही सहाबी हजरत उवैमिर रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, लआन से फारिग हो गए तो उवैमिर ने कहा, उवैमिर ने किनसे कहा? रसूलुल्लाह की खिदमत जब हाजिर थे उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, मैं इस पर झूठ बोलने वाला हूँगा, अगर मैंने इसको अपने पास रख लिया तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसको 3 तलाक़ें दे दी थी। अच्छा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नाफिज फरमा दिया। तो रसूलुल्लाह ने इस तलाक को नाफिज फरमाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो कुछ पेश आया वो सुन्नत करार पाया, क्योंकि जो कुछ रसूलुल्लाह के पास अमल गए रसूल वो तो क्या है, सुन्नत। तो ये सुन्नत करार पाया। साद फरमाते हैं, इस मौका पर मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर था। मैं इसके बाद लान करने वालों के बारे में ये तरीका राइज हो गया कि उनके दरमियान तफरीक कर दी जाएगी। यानी जो शख्स एक ही मजलिस में 3 तलाक़ें कहेगा उनके बारे में फिर यही हुक्म सादिर हो गया कि उनके दरमियान तफरीक कर दी जाए और फिर वो कभी भी जमा ना हो, यानी बाद में वो कभी भी जमा नहीं हो। आखिरी रवायत इनसे अशरे मुबशरा हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये अशरे मुबशरा में से है। यानी तुम खुशनसीब 10 सहाबी यम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनियास में जनत बशारत दिस, उनके बारे में आता है उन्होंने अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे दी एक ही मजलिस में। इसी मजलिस में क्या 3 तलाक अपनी बीवी को दे दी। एक भी ज़ईफ रिवायत ऐसी नहीं मिलती है जिससे ये साबित हो जाए कि उन्होंने अपनी बीवी से फिर रुजू कर लिया हो। आखते हदीस या आखते रिवायत लबन जिससे ये साबित हो जाए कि फिर उन्होंने अपनी बीवी से क्या किया हो, रुजू किया हो। और इसी के बारे में हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर, हजरत आयशा सिद्दीक़ा की रिवायत कि वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक शख्स के सामने एक औरत हाजिर हो गई, जिनका मैंने आपको कल भी हदीस बताई। खातून आकर रसूलुल्लाह हाजिर, उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे शौहर ने मुझे यकबारगी में 3 तलाक़ें दे दी। मेरे खानदान हाजिर में क्या 3 तलाक, गुस्से में आकर उन्होंने मुझे 3 तलाक़ें दे दी। तो मैंने अब इद्दत गुजारने के बाद एक दूसरे शख्स के साथ शादी कर दी, मगर अजीब इत्तेफाक कि वो नामर्द निकला। क्या मैं अब अच्छा, हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह ने उनसे कहा, आपका इंडिया अपने पहले मर्द के पास जाने का है, यानी चशीमा गारस को वापस, लेकिन आप तब तक उसके लिए हराम हो जब तक ये पहला शौहर आपके साथ इस तरह लुत्फ अंदोज ना हो जाए जिस तरह कि आपका पहला शौहर आपके साथ लुत्फ अंदोज हो चुका। इससे भी पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन जिस तलाक इनको उन्होंने नाफिज फरमाया, तभी तो वो उनके लिए हराम हो गई। बहरहाल ये तो ऐसा मसला है, मैं वो तो मैंने ये मसले इसलिए नहीं बयान किए कि क्या कर पन मसलक हक जाहिर, मैं इस बात के लिए आपके सामने ये दलील रखता हूं कि बुनियादी तौर पर हमारे माशरे में ये चलन चला है कि किसी का ये गलती फिर हम तावीलें निकालते हैं और हम गुंजाइश निकालने के लिए किन उलमा के पास दौड़ते हैं, गैर मुकल्लिद
हता कि फुकहा का इसके बारे में बिल्कुल ये फुकहा लिखमुत पन्निन किताबन, जो शख्स मुकल्लिद होकर एक इमाम की तकलीद करते हुए फिर वो गुंजाइश निकालने के लिए किसी दूसरे इमाम की तकलीद करे, तो कभी इम्कान है कि जिस दिन आखिरी वक्त में उसे कलमा नसीब नहीं होगा। यानी आखिरी वक्त में कलमा नसीब, क्यों? क्योंकि वो दीन को खेल बना रहा है और वो दीन को मजाक बना रहा है और शरीयत को अपने ताबे बनाने की कोशिश। और यही तो फिर कजी कौन मिजाज जो हमने बनी इसराइल के बारे में पढ़ा, ये तन पन्ने नफ्स मुवाफिक आसन, तथ कर पन्ने नफ्स मुवाफिक, युस खराब आसन, युस नफ्स बार आसन, उसमें वो तावीलें निकालते थे। अब इस तरह है, इस तरह है, यही हालत हमारी भी हो गई। आखिरी बात वन बह ये कोई इख्तलाफी मसला नहीं है, ये तो वही कि ये इख्तलाफी मसला हमन निश जायज नहीं, क्योंकि मैंने हदीस की रोशनी में कहा इस पर तमाम आइमा का मुतफिका फासला है और तमाम सहाबा इस पर मुतफिक थे। कोतामत इमाम तैमिया रहमतुल्लाह अलैह तब तक तो उलमा में और तमाम सहाबा में इस बात पर इजमा है कि ये 3 तलाकें 3 ही होती है। बल्कि इमाम शामी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि मैंने सहाबा के दौर में देखा कि तमाम लोग 3 तलाकों को 3 ही समझते थे। वो 3 तलाकों को क्या समझते, इसलिए इसका कि ये कोई इख्तलाफी मसला है 8 रकअत तो 20 रकअत, ये वो इख्तलाफी मसला या हदीस को समझने का मतलब अलग अलग जाविया नहीं है, बल्कि दलीलों की रोशनी में पता चलता है कि ये तो असल में गैर मुकल्लिदीन की बुनियादी गलती है, जिसकी वजह से वो 3 तलाकों को एक ही समझते। बहरहाल अम खोत अगर मजीद दलाइल वुशिन आप फिका की किताबों में देख सकते हैं, वहां मुदल्लल इसके बारे में ये 3 तलाक के बारे में यह है। और अगर तो यूट्यूब पर वुशु मुफ्ती तारिक मसूद वीडियोस 3 तलाक के बारे में, उसमें आपको बिल्कुल वाज़ा हो जाएगा कि उन्होंने इसके बारे में एक किताब भी लिखी है 3 तलाक का मसला। अगर कहाँ वेस्ट पढ़ वो यूट्यूब पर या गूगल उस पर अगर आप सर्च करेंगे उस पर आपको ये इसकी डिटेल्स पूरी निकलेंगी, वहां आपको शरही सदर हो जाएगा कि 3 तलाक वाकई 3 ही होती है, इसमें एक की कोई गुंजाइश नहीं है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना।